Hello, this is Hassan Akhtar and we talk about the New Year's resolution today. 2021 is going to begin shortly and thank God that 2020 year is past and is no more. And there were a lot of tragedies happened this year and we are going to remember this for many coming years due to those tragedies. We lost many very dear, very important people, and there was this corona pandemic which lasted almost a year. Anyways, and we do pray that the coming year must be bringing some hopes and optimism and so on. We talk about the New Year resolutions today. नए साल के साथ ही हमें चाहिए कि हम कुछ नए एम्स बनाएं, कुछ नए मकासद बनाएं अपनी ज़िंदगी में, ताकि वो हमारी मदद कर सकें, आने वाले साल को हमारे लिए बेहतर बना सकें. एक्चुअली ये हम खुद हैं जिन्होंने अपने नए साल को बेहतर बनाना है. अगर आप ये समझते हैं कि एक साल बदलने के साल ज़िंदगी बदल जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है. अगर आप खुद अपनी ज़िंदगी को बदलेंगे तब ये बदलेगी. तो मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ, बिकॉज आई एम मेकिंग सम न्यू रेजोल्यूशंस फॉर द कमिंग ईयर 2021, और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स और ख़ास तौर पे मेरे शागिर्द नए मकसद बनाएं अपनी ज़िंदगी में ताकि हम आने वाले साल को बेहतर बना सकें. सो हियर आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रेजोल्यूशंस दैट वी प्रॉमिस आवरसेल्व्स. हम अपने आप से वादा करते हैं कि हम नए साल के साथ अपनी ज़िंदगी में ये तब्दीलियाँ लेके आएंगे. सो आर यू रेडी फॉर दैट? Let's begin. Your first resolution should be to develop a lot confidence in your personality. Believe me, without this, there is no success in any field. If you're doing anything, literally anything, but you have a better confidence, you can do it differently from other people. So this is the most and essential part of any human being's personality. We aim that this year, one of the most important things we are going to do is to develop a better confidence in yourself. There are ways to develop it. We will talk about it later, but this is for sure. You have to develop a sense of confidence. You have to become more confident in everything, literally everything. And you will see the magics later. Increase your emotional intelligence. It is not IQ around which the whole thing revolves. No. In the modern era, EQ, emotional intelligence, is as important as IQ. So you make an aim, you make a resolution, you make a promise to yourself that I'm going to acquire both IQ and EQ as well, to have a better experience of the life's pleasures. And believe you me, EQ in the modern world matters more than the IQ itself. Earn more money. We cannot deny the importance of earning money. This has become the most integral part of our lives in the modern world. So without this, well, you are nothing. Well, I don't say that money is everything, but if it is not everything, then it is also not anything. It is a lot important. Promise yourself that you are going to launch some new business. You are going to do some extra work so that your income should be increased. This should be an aim. This should be a promise to yourself that this year you're going to make more money than the last year. Create a positive attitude. Promise yourself कि मैं अपने अंदर एक positive attitude लेके आऊँगा. मैं लोगों को पे criticize नहीं करूँगा. मैं लोगों के काम से गलतियाँ नहीं निकालूंगा. मैं हर एक को अपनी तनकीद का निशाना नहीं बनाऊंगा. मैं अच्छी आदत अपनाऊंगा और मैं हमेशा मुस्बत चीज़ों के बारे में सोचा करूँगा. ये एक एम बनाएं अपनी ज़िंदगी में इस नए साल के साथ, और देखें कि नया साल किस तरह की तब्दीलियाँ लेके आता है. अगर आपका जहन पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचता है तो बिलीव मी, आपके साथ पॉजिटिव चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं. अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव हैपन्स टू यू. दिस इज़ माई belief and I do really experience it. The times I don't think any negative thing, nothing negative happens to me. So you can try that. Bring more
पीस इन योर लाइफ, डिवाइस वेज, ऐसे तरीके अपनाएं, ऐसे काम अपनाएं जिससे आपकी ज़िंदगी में सुकून आए, आपकी ज़िंदगी में वो अफरा तफरी, वो हलचल, वो हसल एंड बसल थोड़ी कम हो जाए। हर टाइम मोबाइल में अगर लगे रहना, हर टाइम कोई गेम खेलते रहना, हर टाइम किसी के बारे में कोई प्लॉट बनाते रहना, नो, अपनी ज़िंदगी में कुछ पीस लेके आएँ। एक्सरसाइज के बारे में सोचें, कुछ योगा क्लासेस के बारे में सोचें, कुछ म्यूज़िक एंजॉय करें, दोस्तों के साथ टाइम गुजारें, नेचर के साथ टाइम गुजारें। जिस तरह से भी आता है अपनी ज़िंदगी में अमन, पीस लेके आएँ। इसका ज़िंदगी में क्या फ़ायदा है, इसके बारे में हम बात भी नहीं कर सकते। मतलब इसकी ज़रूरत ही नहीं है कि आपको बताया जाए कि आपकी ज़िंदगी में अमन की कितनी अहमियत है। इट्स ऑल अबाउट पीस। व्हेन यू हैव पीस, जब आपका जहन खाली होता है, जब आपके जहन को कोई रिलैक्सेशन मिलती है, तो ये नई नई चीज़ें सोचता है। हो सकता है आप कोई इन्वेंशन कर लें, हो सकता है आप कुछ नया बिजनेस प्लान ले आएँ, हो सकता है आप ज़िंदगी में कोई अहम फैसला करें, लेकिन अगर आपका जहन हर वक्त किसी न किसी चीज़ से भरा रहता है, ये कभी भी कुछ क्रिएटिव नहीं कर पाएगा। इसलिए नए साल के साथ अपने आप से वादा करें कि आप अपने जहन को सुकून देंगे, इसे गुंजाइश देंगे, जगह देंगे, इसे खाली करेंगे, ताकि इसमें कुछ नई चीज़ें, कुछ क्रिएटिव चीज़ें भरी जा सकें। स्ट्रेंथन योर पर्सनल रिलेशंस। नए साल के साथ हम वादा करते हैं कि अपनी ज़िंदगी में हम दोस्तों को कम करेंगे, बेशक, लेकिन जो दोस्त हम रखेंगे, लेकिन जो रिश्ते हम रखेंगे, उनके साथ हम पहले से ज़्यादा मुखलस, पहले से ज़्यादा प्यार करने वाले साबित होंगे। अपने दोस्तों की लिस्ट को कम कर दीजिए, लेकिन जो आपने शॉर्ट लिस्ट किए हैं उनके साथ ज़्यादा वक्त गुजारें, उनको ज़्यादा टाइम दें, उनके साथ खाने खाएं, उनके साथ बाहर जाएं, आउटिंग पे जाएं। अपने रिश्तों को मजबूत करें, उनको कम करें, लेकिन जो कम हो गए हैं उनको जितना ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं आप करें। नए साल के साथ ये आपका मकसद होना चाहिए। लर्न समथिंग न्यू एवरी डे, रीड बुक्स, रीड न्यूज़पेपर्स। अब नए टेक्नोलॉजीज़ के साथ तो ये बहुत आसान हो गया है, आपके व्हाट्सएप में, आपके फिंगर टिप्स पे हर चीज़ पड़ी हुई है। अपने साथ ये वादा करें कि मैं हर रोज़ कोई ना कोई नया सीखूंगा, और जब तक मैं कोई नई चीज़ डेली सीख नहीं लेता, मैं सोऊंगा नहीं। अपने साथ ये वादा करें और इमेजिन करें कि अगर आप हर दिन में सिर्फ 2-4 नई चीज़ें सीखते हैं, तो 365 दिनों में आपके नॉलेज का, आपकी अंडरस्टैंडिंग का क्या हाल होगा। सो अपने साथ ये वादा करें कि मैं हर रोज़ कोई ना कोई नया करूंगा, मैं कुछ ना कुछ नया सीखूंगा, और जब तक मैं कुछ नया सीख नहीं लेता, मैं वो दिन ख़त्म नहीं करूंगा। फील द मोमेंट। आई कैंट एक्सप्लेन कि ये कितना अहम है और इससे ज़िंदगी में कितना सुकून और कितना मज़ा आता है, क्योंकि मैं इसको पर्सनली अपनी ज़िंदगी में लागू कर चुका हूँ। फील द मोमेंट। You are taking a hot cup of coffee in your hand or tea. You are enjoying the company of your lover. You are with your friends. You are sitting beside your father. You are doing anything. Just remember this, that I have to feel the moment. ये लम्हा कितना खूबसूरत है, मैंने इसको महसूस करना है, मैंने इसको अपने अंदर जज़ब करना है, मैंने इसको अपने जहन की तहों में बिठाना है। वो चाय के कप को सिर्फ मैं पी नहीं रहा हूँ, बल्कि मैं उसकी हिद्दत को अपनी रूह में महसूस कर रहा हूँ। फील द मोमेंट। आई वुड से कि आप इसको एक बड़े से पेपर पे लिखें और हर जगह पे पेस्ट कर दें, अपने कमरे में, अपने बेडरूम में, अपनी स्टडी टेबल के सामने। फील द मोमेंट एंड इट ब्रिंग्स सो मच हैप्पीनेस एंड ecstatic pleasure that I can't even explain it. Learn a new soft skill. Remember this World Economic Forum, उसके ऊपर आजकल एक ऐसे गर्दिश कर रहा है कि आने वाले सालों में, आने वाले 5 सालों में बहुत सारी जॉब्स खत्म हो जानी है, लेकिन उनकी जगह पे डबल जॉब्स ने ले लेनी है। और नई जॉब्स क्या होंगी? सॉफ्ट स्किल्स के बारे में। अपने साथ ये वादा करें कि इस साल में मैंने एक नई सॉफ्ट स्किल सीखनी है। नाउ व्हाट आर द सॉफ्ट स्किल्स? पब्लिक स्पीकिंग, बीइंग अ मोटिवेशनल स्पीकर, रनिंग योर ओन यूट्यूब चैनल, राइटिंग ब्लॉग्स और एनीथिंग लाइक दैट। ओके, सो अपने अंदर कोई नई सॉफ्ट स्किल पैदा करें। अगर आप आने वाले ज़माने में सर्वाइव करना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है। इस साल, और 1 साल बहुत होता है कोई नई स्किल सीखने के लिए। अपने साथ ये वादा करें कि मैं एक नई सॉफ्ट स्किल सीखूंगा 2021 में। Enjoy the little things. Remember, I have a belief that the most ecstatic happiness lies in the things most simple. इंसान की वो खुशियाँ जो उसके दिल में उतर जाती हैं, जो उसकी रूह को सुकून, इत्मीनान और अमन बहम पहुँचाती हैं, वो सादा चीज़ों में पिन्हा है। हम
खुशियां ढूंढते हैं बड़ी बड़ी कारों में, बड़े बड़े बंगले में, पैसे में, हालांकि ऐसा नहीं है। इंसान की सच्ची खुशियां जो उसको वाकई राहत पहुंचाती हैं वो सादा चीज़ों में हैं। तो हम आने वाले साल में अपने आप से वादा करते हैं कि हम उन सादा चीज़ों से अपनी खुशियां ढूंढने की कोशिश करेंगे। वो खुशियां जो हमारे दिल के ज़ख्मों को मंदमल कर देंगी, जो हमारे रूह के ज़ख्मों को ख़त्म कर देंगी, ऐसी खुशियां हम तलाश करेंगे, वो भी सादा चीज़ों में। Read more. Remember, without reading, you are what? I think you are nothing. Well, a wise man once said, there is absolutely no difference between a person who can't read and a person who doesn't read. आपने एमफिल किया हुआ है, डॉक्टरेट कर रहे हैं, आपने एमए किया हुआ है, but you don't read books. There is no difference between you and the person who never went to school. वो कभी स्कूल गया नहीं, उसको पढ़ना आता नहीं है, और आप कभी पढ़ते नहीं हैं। So आप दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। With the new year, you make yourself a promise that I will read new books. नई किताबें जो मुझे नई दुनियाओं में लेके जाएंगी, जिससे मुझे नए तजर्बात मिलेंगे। देखिए, मैं अक्सर कहता हूँ कि एक बंदे ने 50 साल ज़िंदगी गुजारी और 50 सालों की ज़िंदगी का निचोड़ उसने एक किताब में लिख दिया, और आपने सिर्फ वो एक हफ्ते में, 2 हफ्तों में किताब पढ़नी है और उसकी 50 साल ज़िंदगी के तमाम तजर्बात को आपने सीख लिया है। हाउ ईजी इट इज़। और पढ़ने के बगैर आपका जहन खाली है, आपकी गुफ्तगू में वजन नहीं होगा, इसके बगैर कुछ भी नहीं है। सो मेक योरसेल्फ अ प्रॉमिस कि आप नए साल के साथ नई किताबें पढ़ेंगे और अपने आप को ज़्यादा मैच्योर, ज़्यादा वाइज बनाएंगे। एंड लास्ट नॉट लीस्ट, वॉक मोर, ईट लेस। विद द न्यू ईयर, दिस इज अ प्रॉमिस टू माई सेल्फ। मैंने अपने आप से ये वादा किया, अब देखिए मैं इस पर कितना अमल करता हूँ। दैट दिस ईयर इज नॉट द ईयर ऑफ ईटिंग, this year is a year of walking. So I will walk as much as I can so that I could keep myself younger, smarter and cuter. Make yourself promise कि इस साल खाना बहुत कम खाना है, और जो खाना है वो हेल्दी खाना खाना है, और मैंने वॉक बहुत करनी है। अपने किसी करीबी दोस्त को साथ लें और वॉक पे निकल जाएं। Walk as much as you can. This is such a cute thing. This is such a sweet thing कि इसके बारे में क्या बात की जाए। So this is my promise, and I want you to promise with me, this year is a year of a lot walk and not a lot eating. With the arrival of the new year, आप एक ज़िंदगी में ये भी एम बनाएं कि मैं एक नया हॉबी बनाऊंगा अपनी ज़िंदगी में, जो मुझे वाकई खुशी देता है, जो मुझे सुकून देता है, और जिसको करने के बाद मैं बड़ा रिलैक्स्ड महसूस करता हूँ। ये हॉबी ऐसा होना चाहिए जो आपके दिल से निकल रहा हो, जो आप वाकई करना चाह रहे हो। उसके लिए बेशक आपको कितनी भी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े, दें, लेकिन उसको अपनाएं। You know, this was my hobby, talk. I just love talking, and you see what happened, because I was sincere. I was really sincere with my hobby. My hobby turned into my profession. I became a teacher, and now I'm running an online class, and what I do here is to talk. I just talk with my students, and in this very talk I tell them what to do and how to speak English. So, you know, there are a couple of benefits I take from my hobby, talking. First is that I earn. Obviously, these are the classes and my students pay me. Second, my ambition is to talk, and I do talk. I really do talk a lot. Thirdly, when I talk for 2 consecutive hours and I'm speaking English all the time, what happens is that my own language skill is improving. Isn't that funny? And the fourth advantage is that maybe I have to teach my students, so I do a little research. I watch some videos and then, you know, English TV serials, and I learn new things every day. How to pronounce particular words, how to adopt stress patterns, word stress and sentence stress, and you know, there is a whole list of this. So this was a hobby, but luckily, because I was really sincere and pure to it, it became a profession. Now this is my hobby, and I'm also earning from my hobby. It happens very rare. So make yourself promise कि आप नए साल के साथ एक नया हॉबी बनाएंगे, और ये हॉबी आपको खुशी देगा, और पैसे के बारे में सोचना नहीं है आप। ओके, पैसा बाद में आना चाहेगा तो आ जाएगा, बट यू आर डूइंग इट फॉर योर प्लेजर, not for the money. I hope these resolutions will help you make your new year a little better and sweeter. That's it for today.
This is Hassan Akhtar saying you goodbye from his house roof. See you next time.